My screen is visible. No, sir. Yes, sir. Fine. So this is my Google Colab. अगर आप लोगों के पास एनाकोंडा नहीं इंस्टॉल करने की तो कुछ नहीं करना है आपको गूगल कोलैब पे जाके जो नोटबुक पर काम करने को हमको वो सारी नोटबुक यहाँ पर हम बनाएंगे। This is the तो आज हम स्ट्रिंग से काम चालू करेंगे। तो सर आवाज में काफी नॉइस आ रही है। वेट जस्ट वेट, मेरा सिस्टम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 2 मिनट वेट करना। ओके नाउ अब आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर, पीछे से यस सर, अभी भी नॉइस आ रही है सर। नॉइस आ रही है, अब आ रही है? यस सर, नॉइज आ रहा है। यस सर। यार मेरे इसमें तो कोई नॉइस नहीं है। मैं तो खाली रूम में बैठा हूँ। So I'm starting my strings. अब आ रहा है नॉइस? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यार पंखा भी बंद कर दिया मैंने। Okay, so we are starting with the concatenation of two strings. Let's say we are having one string that is named as hello and the second string is word. Fine. So I like to concatenate this string. So simple is that simple. What I can do is I put hello, that is my string, then comma, this is the thing, this is my string, just hello comma, then I like to add word to it. So I am just putting a word, putting a operator plus here. So I can go for hello plus sorry, in inverted code hello, then plus, then again in inverted code I'll put in word. So this is hello plus word. So my result is hello plus it is then giving. So I'm having hello then word. So fine. Then next I'm just assigning a hello to any variable. So let's say x is equals to hello, then the next word is next y is the word, then I'll just like to save it into x plus y. So I'm printing x plus y. So this is again a hello word. So I'm just we can use plus operator to concatenate two strings. Fine. तो सर या सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। यार मेरी तरफ Yes, sir. नहीं है, और किसी का माइक चालू होगा? एक मिनट होल्ड करना। नाउ अब कोई डिस्टरबेंस है? हेलो, यस सर, अभी भी है। सर अभी भी आ रही है वॉइस। क्या आ रहा है? मतलब पीछे से कुछ साउंड आ रही है? क्या सर, नॉइज आ रहा है? यस सर। यार मेरी तरफ से तो पंखा भी बंद है और मोबाइल भी बहुत दूर है, मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें। मतलब अब तो मतलब मैं जीरो में बैठा हूँ। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेरा लैपटॉप चल रहा है उसकी नॉइस होगी, पर उससे ज़्यादा नहीं। फाइन। सो वॉइस इज क्लियर? यस सर, अब यस नहीं आ रहा। सर, अब Okay. आ रही है आपकी वॉइस क्लियर। Okay, fine. So next is let's say so this is hello word, so we can use hello plus so we can use an plus operator to concatenate two string. Then we are having in the Python, we this hello word can have different representation. What the first is what a user understand, and second one is what your Python understands. Let's say I like to print hello, then like to print word in the next line. So what can I use is that hello then backslash word. So
I'm just adding over here a new code cell. It's fine. So let's say I like to सर print. Yeah. सर अगर यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ऑपरेटर की जगह अपन माइनस रखे तो क्या होगा? स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग माइनस नहीं होती भाई, नहीं तो उसका आउटपुट नहीं आएगा क्या? एरर आएगा? या उसके आउटपुट ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमको स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट करना है। हम एक स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग माइनस कैसे कर पाएंगे? हम जस्ट ऐड कर सकते हैं दो स्ट्रिंग, दैट हेलो देन प्लस वर्ड। हाउ कैन आई सब्स्टिट्यूट हेलो माइनस वर्ड? उसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रहा है। ओके दिस इज हेलो, या so again this is hello and word, so I am going for this hello and word. So this is just a representation. आप जो user understand करता है, this is hello then new line then word, but what a Python understand this? So we are having a function that is known as repr. So this function represents what your Python understand this string actually is. So when I am printing this repr hello then slash and then word, so it represents that it is in a single inverted code hello space then slash and then word then single inverted code. While what a user understand is that we are using a string function. This has been automatically be used by the Python. So this is string then hello world. So it actually represents जो मैंने यहाँ यूज करा था वहाँ, अगर हम उसको string function यूज नहीं करेंगे तो by default भी वो ऐसे ही यूज होगा. So this is an string representation. So this string function represents what a user can understand, but this repr function represents what actually Python is looking this string actually in its raw form. So यूजुअली अगर आपको बिग साइट पर काम करना है तो आप REPR पर काम करें, उसमें से आपको स्ट्रिंग के जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, हमको डेटा अगर निकालना है तो उसमें से वाइट स्पेसेस होंगे, जो भी चीजें होंगी वो रिप्रेजेंटेशन आपको REPR फंक्शंस में मिलेगा. और हमको सिंपल उस स्ट्रिंग में से डेटा उठाना है तो हम स्ट्रिंग फंक्शन या सिंपली प्रिंट से हम डेटा ले सकते हैं. दिस इज फाइन. देन if I want to use a long sentences जो हमारी एक लाइन में आ नहीं पा रहा है, तो what we can use is we can use a triple quotes over here. So just look at this example. So I am printing triple quotes. So this is opening. Then I can write anything as long as possible. Even I can put enter over here. So this is my, I put enter here. Then again here I pressed an enter. So I am having the output in the 3 lines. So I am printing this line. So I can put 3 quotes for a very long sentences. Even for the small sentences, I can use a simple backslash. So here print then backslash hello. So I can use for small sentences. So this is I can put and this is used to avoid some white spaces over here. Again, this triple quotes is used for avoiding the white spaces or a new line character over here, and it represents your data as a string. And in addition to that, this backslash, and this is used for same case, but it is used for the small set of strings or small sentences. So this is just a representation that hello then backslash then word. So it will represent your hello word. So this is nothing, it does nothing actually in this sentence form, but when I put this backslash out here, so this is print then backslash then hello word. So we are having an output hello word. So it is been considered, this next line is being considered as a inline to this print function. So this is the use of backslash and triple quotes. Now if I am having the long expression over here, so I can put it as a 1 plus 2 plus backslash then 4 plus 5. So it will result in 12. While अगर मेरे पास यहाँ पे मैं backslash नहीं देता तो मेरे पास यहाँ input जो था वो कुछ गलत देता, या लेट्स से मैं एक कोड यहाँ अगेन इनपुट करता हूँ 1 plus 2 then अगर यहाँ पे फिर मैं लिखता 4 plus 5, तो इसका रिजल्ट मेरे पास आता 9. फाइन, मैं इसके आगे प्लस लगा लेता तो मेरे आउटपुट आता
नहीं, हाँ सभी को ऐड करना था, अलग अलग सीक्वेंसेस में था, सो आई कैन यूज backslash over here. So this is my backslash, so this is 12. So this is the usage of backslash. Now we are having some raw strings as well as some skep sequences. So let's say my data is path equals to c colon slash nowhere. So मेरी कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एक स्ट्रिंग में हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस भी आ सकती हैं। तो जैसे ही अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पर ये क्या करता है पाइथन, इस ये वाला जो पाइथन है, ये पाइथन जो है यहाँ पे बैकस्लैश n को एज ए एस्केप सीक्वेंस कंसीडर करता है, और जैसे ही एस्केप सीक्वेंस कंसीडर करता है तो जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे को प्रिंट करके देगा c कॉलन देन o वेयर, क्योंकि इसने यहाँ पर इसको एस्केप सीक्वेंस को कंसीडर कर लिया है स्लैश n को। तो मुझको अगर अवॉइड करना है एस्केप सीक्वेंस तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस स्लैश के आगे एक बार और बैक स्लैश लगा लेता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट मिल जाएगा c colon nowhere. So this is first usage of to avoid your escape sequences. So what you can do this, you can add additional backslash to avoid escape sequences, or we can use r for the raw string. So either we can use this r, so we can put r before r string. So then I want to just execute this. So the result of this nowhere is again c colon nowhere. So what you can do is that you can add additional backslash, or you can put r before the string to avoid the escape sequences. Then comes the usage of that small quotes, because this let's say I am having a sentence where let's go. So when I am writing this let's go, so what it does is it starts string from let, then this apostrophe s, so it considered as a apostrophe s, no sorry, as a end of string, then s go is out of your string. So प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसने यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी एस जो था उस अपॉस्ट्रोफी एस को एस्केप सॉरी वहां पर स्ट्रिंग को उसने खत्म कर दिया। अब यहाँ पर अगर मेरे को मैच करना होता तो मैं एक बार और सिंगल कोट ऐड करता, ठीक है, पर ये हमारा सेंटेंस नहीं था। तो इस सेंटेंस में इसने क्या करा, इस सेंटेंस में इसने एस देन गो को आउटसाइड द डोमेन ले लिया, मतलब वो मान के चल रहा है कि ये एस और गो नाम के कोई वेरिएबल होंगे जो स्ट्रिंग में नहीं आ रहे। तो एरर क्या आ रही है, इसमें एरर आ रही है दिस इज इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये हमारे सिंटैक्स में नहीं था। तो एडिशनली इस चीज को अवॉइड करना है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे फिर हम आर लगा लें। तो आर लगा लें तो ये हमारी एस्केप सीक्वेंस जो है हमारे पास आ गई। अब सॉरी यहाँ पर हम आर लगा लें तो हमारे पास यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस को इसने इंक्लूड कर दिया। सो यू कैन यूज आइदर आई कैन अवॉइड दिस एंड व्हेन जब हम इसको अवॉइड करते हैं तो फिर ये इनवैलिड सिंटैक्स हमको देगा। हम क्या करेंगे, इस अपॉस्ट्रोफी एस के आगे एक बैकस्लैश लगाएंगे, देन विल यूज दिस इज लेट्स गो। पर अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी सॉरी स्लैश आ रहा है। अब इस स्लैश को कैसे हटाएं, एनी आइडिया? डबल स्लैश लगा के डबल स्लैश लगा लेते हैं, बट डबल स्लैश लगा देता हूँ, क्या आउटपुट आएगा? डबल स्लैश तो नहीं आ रहा। आर सर, आर भी तो लगाना पड़ेगा। आर लगा देते हैं, ये आर लगा दिया, ये डबल स्लैश लगा दिया, नहीं आ रहा। अब so write down, this is your first assignment, how to avoid this backslash. आपको हिट एंड ट्रायल करना है, वो हिट एंड ट्रायल के बाद आपको आउटपुट निकलना है। मैं आपको लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स दूंगा आज ही। सो दिस इज माय फर्स्ट असाइनमेंट इज दैट हाउ टू अवॉइड दिस बैकस्लैश एंड लेट्स गो, और वी कैन फाइन नाउ द यूसेज ऑफ हमारी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। हम सॉरी
इसी सेंटेंस में आएगा, आपको ध्यान रखना है कि हमको कैसे करना है। सो लेट्स से डबल स्लैश तो मैं हटा रहा हूँ। सो लेट्स से आई एम प्रिंटिंग दैट बैक स्लैश एट द एंड। ये बैक स्लैश एंड पे हम क्यों लगा रहे हैं? ये स्लैश हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमारा जो अपोस्ट्रोफी एस था, इस एस को वो इंक्लूड कर रहा था। फाइन। तो अब ये हमारा जो अपोस्ट्रोफी सॉरी जो बैक स्लैश है, ये बैक स्लैश अगर हम एंड पे लगाते हैं, अगर ये बैक स्लैश अगर हम एंड पे लगाते हैं, ये बैक स्लैश एंड पे हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हम आर के अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं, पर जैसे ही हमारे पास अगर कोट आ रहा है, एस्केप सीक्वेंस नहीं आ रही, अगर हमारे पास कोट्स आ रहा है, कोट को अगर हमको एंड करना है, तो जैसे ही हमको कोट को एंड करना होगा तो हमको एक बैक स्लैश लगाना पड़ेगा इस कोट को हटाने, कोट को अवॉइड करने के लिए, कि दिस स्लैश देन कोट इज जस्ट नाउ बिकम्स एन एस्केप सीक्वेंस। नाउ अब कई बार ऐसा होता है कि ये स्लैश हमारे सबसे आखिरी में आता है, तो अगर हमारा ये स्लैश सबसे आखिरी में आता है तो इसका कोई यूसेज होता नहीं, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई कैरेक्टर आ नहीं रहा है। तो अगर इसके एंड में हमारे पास कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा है तो दिस इज एन इलीगल सीक्वेंस। तो हमको क्या करना है कि इस स्लैश के आगे हमको एटलीस्ट एक या दो कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज इसका कोई यूसेज नहीं है। क्योंकि इसका जब यूसेज ही नहीं है तो इसको यूजुअली पाइथन कंपाइलर क्या करता है, इस पाइथन कंपाइलर इसको वार्निंग देता है या इलीगल बताता है। क्यों? क्योंकि इसका यूसेज नहीं है, तो दिस इज एन रॉन्ग यूज केस। सो व्हाट वी कैन डू इज वी हैव टू पुट एनीथिंग, या हमको पुट नहीं करना है, हमको ये करना है कि हमारा जो स्लैश है वो आखिरी में नहीं है, आखिरी में नहीं आएगा। तो अगर आखिरी में स्लैश आ रहा है तो उसका यूसेज नहीं है। तो अगर ये स्लैश के बाद में अगर दो हाई आ रहा है तो दिस इज गुड एंड it will run successfully. So we need at least one character after this backslash to avoid the missequence of your quotes in your string. Then मान लो हमारे पास, जैसे मेरे पास ये बार था, मेरा ये पाथ ही आ रहा है। अब इस पाथ में बाय डिफॉल्ट ये जो बार बैक स्लैश होता है, ये बैक स्लैश तो आखिरी में आता है। अब बाय द सीक्वेंस हमारे पास क्या हो रहा है, हम इस सीक्वेंस में हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो बैक स्लैश है, ये बैक स्लैश आखिरी में नहीं आना चाहिए, इसके आखिरी में कोई कैरेक्टर एटलीस्ट एक तो आना चाहिए। पर अगर हम ये पाथ बना रहे हैं, डायरेक्टरी का पाथ बना रहे हैं, तो डायरेक्टरी के पाथ में तो बैक स्लैश आता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके आखिरी में एक बैक स्लैश और लगा देंगे, डबल स्लैश लगा देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक बार और बैक स्लैश लगा दिया, यहाँ पे कोट्स खत्म करके, तो हमारे पास ये वाला पूरा पाथ आ गया। कोई प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। ओके, थैंक यू। फाइन। सो हमारे पास बहुत सारे यूनिकोड सेट ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। आप इस वाली साइट पे जाइएगा unicode.table.com, इस पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। सो I am just printing /u. This is /u is for your Unicode. Then 00C6. So this is 006 is this represent your cat. तो आप यहाँ पर आपकी cat को sorry, this is you use 006 represent this character, and when you want to put your cat over here, so you can use /m, then in bracket curly bracket put code, put cat over here. So this will represent this is a cat. So you can add additional figures here. So this list of your figures are available in this site. So you can go for http://unicode-table.com. So आपके पास ये सारी चीजें मिल जाएंगी. So this is just an calculation with string. हम इस string को आगे भी काम करते हैं. So then comes I'm going to सर next slide. हाँ. सर जो आपने बैकस्लैश वाली चीज पूछी ना अभी, तो अभी लास्ट कोड में आपने डबल बैकस्लैश लगाए थे एक बैकस्लैश को ऐड करने के लिए, वो डायरेक्टरी में अपन को करना रहता है। तो अगर वो डबल बैक मतलब जो क्वेश्चन था कि बैकस्लैश वहां से कैसे हटाना है, तो उसके आगे अगर अपन एम्प्टी कोट्स लगा दे, एम्प्टी कोटेशन मार्क्स लगा दे, तो उससे हाँ, हो सकता है क्या? या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें आखिरी में उसको स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर दें। मतलब मेरी जहां से मेरा जैसे पाथ है C:अभिषेक /सिंह देन स्लैश, तो मैं एक स्ट्रिंग अगर ऐसे कर सकता हूँ कि C:/अभिषेक /सिंह, एक ही स्ट्रिंग बना लेता हूँ, दूसरी स्ट्रिंग बना लेता हूँ B = सिंपल n स्लैश,
तो उस स्लैश में भी मेरे को डबल स्लैश तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक स्लैश तो जस्ट एन एस्केप सीक्वेंस होगा। तो मैं दो सीक्वेंसेस को मैंने यहाँ ऐड करा है, यहाँ कुछ नहीं करा था। यहाँ ये दो सीक्वेंसेस जो है ना, ये एक स्ट्रिंग हो गई मेरी, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस इज माय सेकंड स्ट्रिंग, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग अपेंड हो गई। कोई प्रॉब्लम? ओके सर। हाँ, नो नो सर। और ऊपर जो दिस इज इलीगल वाला है, उसमें जो एक स्लैश आ रहा है जो यहाँ रिमूव करने का था, हाँ, तो हाँ उस अपन जैसे आपने अभी दो बैक स्लैश ऐड करे, उसकी जगह सिर्फ दो कोटेशन मार्क अगर अपन कोड में डाल दे लास्ट में, तो वो बैक स्लैश शायद नहीं रहेगा। ये तो मैंने आपको असाइनमेंट दिया। देखो होता क्या है कि मैंने सिर्फ सिंगल एक डेटाबेस से एक फाइल उठा के ला रहा हूँ मैं, है ना, कहीं से टेक्स्ट फाइल उठा के ला रहा हूँ। अब उस टेक्स्ट फाइल में लिखा होगा लेट्स हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग, इट्स माय टाइम। तो डेटा कहाँ से लिया उसने? डेटा लिया हाउ आर यू एंड इट्स माय टाइम। तो हाउ आर यू से लेकर इट्स पर जाके वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वहां से उसने इट्स पर अपॉस्ट्रोफी एस आ गया, तो उसने स्ट्रिंग को वहां पर ले लिया। तो अब हमको उस अपॉस्ट्रोफी एस को हमको अवॉइड करना है। यूजुअली हमारे पास इनपुट में छोटा छोटा इनपुट नहीं होगा, मेरे पास तो एक बहुत बड़ी फाइल हो सकती है जो हमारे पास इनपुट में यूजर देगा। अब जब यूजर इतनी बड़ी फाइल देगा तो हम उसमें चेक तो नहीं कर सकते कि कहाँ अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हमको उसको कैसे अवॉइड करना है? तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये स्लैशेस लगाते हैं या उसके आगे आर लगाते हैं। ओके सर। है ना, हम छोटे इनपुट पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लार्ज लेवल ऑफ एप्लीकेशंस पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूजर से इनपुट कुछ भी आ सकता है। हम सारे इफ एंड एल्स केसेस को देखते चल रहे हैं कि उन चीज़ों में क्या हो सकता है। सो ये नेक्स्ट सीक्वेंस दिख रही है, दिस इज लिस्ट एंड टपल्स माई, मेरी जो दूसरी फाइल है, या पहली फाइल ही दिख रही है आपको? पहली फाइल ही दिख रही है, सेकंड फाइल नहीं दिख रही? दिस इज सीक्वेंस इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड सो ऑन। सर अब दिख गई। अब दिख रहा है। ओके, थैंक यू। सो एक नोटबुक मैंने खत्म कर दी, दिस इज माय सेकंड नोटबुक, और मेरे पास अभी 10 नोटबुक्स और हैं। सो फाइन, नाउ वी आर हैविंग सम सीक्वेंसेस। अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग ली थी, अब मैं सीक्वेंस पे बात कर रहा हूँ। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंस इज ए जस्ट एन collection of some strings. So string is just a collection of some word character. So अभी तक आप लोगों ने C++ में क्या पढ़ा था? आपके पास एक सीक्वेंस होती थी, जैसे अरे होता था, अरे अगेन अ सीक्वेंस, उसमें सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स ही आते थे। आइदर इट इज इंटीजर, आइदर इट इज एन कैरेक्टर, आइदर इज एन फ्लोट। अब पाइथन में हमारे पास क्या है? दिस इज अ सीक्वेंस। सो दिस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। क्योंकि हमने यहाँ पे इसका डेटा टाइप डिफाइन करते ही नहीं है, तो हम ये भी डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें कैसी वैल्यू आएगी। पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज अभिषेक, तो दिस इज अभिषेक सिंह राठौर, देन 36। सो मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही है? मेरे पास कुछ भी वैल्यूज आ सकती है। नेक्स्ट मैं हेक्साडेसिमल बाइनरी वैल्यूज कुछ भी लिख सकता हूँ। सो this is this is just a collection of values. So it is not an similar type of values, it contains any type of value. So we are having sequence. So in sequence में हम initially पढ़ेंगे this is a list and tuples. So I am just going with initially sequence, and this sequence are just list. So अभी आप उसको sequence ही मान के चलिएगा. So let's say I am having sequence named as Abhishek that contains first item Abhishek Singh Rathore, then second item 36. So I am opening this with big brackets, so or a square bracket. So with a square bracket I am having a sequence that is Abhishek Singh Rathore, then 36, then second sequence is Anuraj, so this is Anuraj Singh Rathore, then 5. So I am just printing Abhishek. So I mean the first I can print my sequence over here. So this sequence is available here. This is Abhishek Singh Rathore, then 36, and then another sequence, this is Anuraj, so this is again another sequence Anuraj Singh Rathore, and then it's 5. Fine. So this is my sequence. How to create a new sequence? You can create a new sequence like a new sequence equals to, then put your item. This is again my list 1, and this is my sequence 1, and this is my sequence 2. So we can create a sequence of sequences. So this new sequence is a sequence of another sequences. So what it contains? So it contains first my sequence and second another sequence. To show what it contains, so you can just print this new sequence. So in this new sequence it contains first sequence and again another sequence,
Additionally, I can add new items to these sequences. So you can have a sequence that contains number of items, or you can have a sequence that contains number of sequences over there. So we are in very comfort zone. Instead, uh, when comparing with the C++, you are in a single type of values and you cannot add a sequence into sequence. So this is our sequences. Now the sequences are good. Now first thing is that how to index these sequences. So let's say my another sequence is, let's say, greeting equals to hello. So I am just creating a sequence. That the sequence, this is greeting. So when I like to print this sequence greeting, so it represents it as a hello. So this hello is just an string. Now I am not considering this as a sequence, but yeah, this hello can be considered as a sequence of characters. So this string, so you can say that a string is a sequence of number of characters over here. So I'm just printing my string or the string sequence as character sequence. So this print greeting, so you can get hello over here. Then I like to put what is the value of greetings indexed on 2. So indexed on 2 is L. So this is H is indexed as a 0. Then E is indexed as a 1. This first L is indexed as a is indexed at the position 2. So greeting 2 returns a value of first L. Okay. Okay. Then another thing, in the case of C++, you cannot go for the minus of the indexing position. So you can start from the 0, then n minus 1 position. But in the Python, you can go for the minus position. So this is greetings, then minus 1. So minus 1 position. So minus 1 position, it refers that you are going from the last to the first. So minus 1 represents your first item, that is O. Then this again second L represents minus 2. This is minus 3. This is minus 4, and this is 4. So in case of negative sequence starts from minus 1 to the backside, and your positive indexing starts from the 0th position to the n minus 1 position. So greetings minus 1 represents your uh, O. Then I'm just adding one code. What it represents, tell me. Greetings. Then let's say this is minus 4. What will be the result? This is minus 4. What would be the result? Any responses? E. 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 E आएगा E. E. G R W T A E G. स्पेलिंग सही है? अरे नहीं सॉरी, मैंने इसको रन नहीं करा। सर प्रिंट नहीं, मैंने इसको रन नहीं करा था ना। So this minus 4 represents E, and this minus 5 represents H, right? So आगे बढ़े। Now let's say मैंने कुछ यूजर से इनपुट लिया और उसकी 0th पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, जैसे हमने कल चेक करा था। दिस इज इनपुट, देन एंटर एनी वैल्यू, एंड लेट्स से चेक व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ दिस। सो I'm just running this code again, and let's say I can so I'm just want to find out what is the second position of the input user. So this is the B. So you can go directly from, you can extract directly from the input values instead of writing the long big codes. So this is my first position, right? Now अब मुझे एक सीक्वेंस बनानी है। वो सीक्वेंस कैसे बनेगी? अच्छा, इसके पहले एक चीज और बता देता हूँ आपको। लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है a इक्वल्स टू हाई। अब मैं चाहता हूँ उसको a इंटू 5। आउटपुट क्या आना चाहिए?
हाई इंटू 5। सर हाई प्रिंट होगा 5 बार ऐसा। या बिल्कुल ऐसे ही होगा। So the result will be the high printed 5 times, right? No. सर एक और डाउट था मेरे को। हाँ सर वो सबसे ऊपर आपने दिखाया था ना आपका नाम उसके बाद 36 लिखा था, वो किस लिए है वो बता दीजिए। अरे मैंने एक सीक्वेंस बनाई है, मैंने एक एरे बनाया है। सीक्वेंस को आप यहाँ मान के चलो कि एक मैंने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है। सर नहीं एक और 36 को अब अगर हटाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? ये लिस्ट में एक ही आइटम होगा ना। मेरे को एटलीस्ट 2 आइटम तो डालूंगा तभी तो लिस्ट बनेगी। ओके अगर मैं तुमको अगर उसको नहीं दिखाना चाहता, मैं उसकी लिस्ट नहीं बनाना चाहता, मगर सिंगल वैल्यू देता, सिंगल वैल्यू में यहाँ पे से ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू हेलो भी लिख सकता था। अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा आइटम है तो मैं उसको फिर लिस्ट बनाऊंगा। अगर सिंगल आइटम है तो उसको एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मान के चल चलूंगा ना, ओके ओके है ना। अब यहाँ पे 2 अगर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आ रही हैं तो भी मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा, पर अभी यहाँ पर मेरे पास सिंगल ही आइटम है तो सिंगल आइटम को मैं क्यों लिस्ट बनाऊँ। इट ऑटोमेटिकली वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स तो रही ना कि यहाँ पर अगर मेरे को आगे एक और हेलो वर्ड ऐड करना था तब मेरे पास यहाँ वैल्यू है, राइट। ओके सो इसका आउटपुट अभी चल ही रहा है टाइम, तो ये लिस्ट जो है आपकी 5 बार प्रिंट हो जाएगी ना। सो मुझे ऐसा कुछ डालना है कि मैं मेरी डेट डालूं, जैसे लेट से इनपुट में मैंने डाला था आज ही रन करा था ये। सो दिस इज 2020 ईयर था, मंथ 8 है और डे जो है वो 28 है। तो आउटपुट में क्या आ जाए, दिस इज 28 अगस्त 28 2020। सिंपल हम स्ट्रिंग में कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन लग नहीं रहा है। तो हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं मंथ की। तो we are having a list of months. So this is January, February, March up to December, fine। इतना समझ में आता है, एक लिस्ट बनाई है। थोड़ा सा मेरे को इसके लिए इनपुट आपका डायनामिक लगेगा क्योंकि ये प्रोग्राम समझ में नहीं आना आप लोगों को, फाइन। इस लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन। नाउ अब जैसे यहाँ पे मैं 28 ले रहा हूँ, तो 28 अगर ले रहा हूँ तो 28 के आगे मैं यहाँ पर एंडिंग कैरेक्टर भी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट और बना लेता हूँ, दिस इज एंडिंग, फाइन। सो दिस इज माई एंडिंग लिस्ट। तो एंडिंग लिस्ट में अब हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू 20th। Then we are having 21st, 22nd, 23rd, then up to 30 we are having 30th, then we are having 31st। So मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट के लिए मेरे पास अगर मैंने 1 डाला तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो थर्ड आइटम सॉरी जीरो इंडेक्स पे मैंने फर्स्ट डाला, सेकंड पे एनडी डाला, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे एनडी डाला, सेकंड पोजीशन पे मैंने आरडी डाला। उसके बाद उस लिस्ट में मैंने आगे क्या ऐड करा, उस लिस्ट में आगे 17 वैल्यूज था, क्योंकि थर्ड 3 के बाद मतलब 4 से लेकर 20 तक मेरे पास 17 आइटम्स आ रहे हैं। तो 17 आइटम में मैं क्या करूँगा, सबके आगे टीएच आएगा, तो यहाँ पे स्टार 17 इंटू टीएच। तो ये वाली लिस्ट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। तो दिस इज 17 इंटू टीएच। तो मेरी एक लिस्ट बन गई, क्या बनी मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक इस लिस्ट में यहाँ तक मेरे पास 20 आइटम्स आ गए, जिसमें ST, ND, RD एंड 17 टाइम्स TF। देन कम्स व्हाट इज द 21st आइटम। तो 21st आइटम मैंने यहाँ पे एक स्लैश लगा दिया क्योंकि हमने इसको भी यूज देखा था। तो दिस इज 21st, अगेन दिस इज 22nd, दिस इज 23rd, देन नेक्स्ट 7 आइटम्स। तो नेक्स्ट 7 आइटम्स आर TH। तो यहाँ पर फिर हमने उस लिस्ट को वैल्यू एड कर दी, दिस इज TH, देन दिस इज फर्स्ट। सो एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट, पांचवी लिस्ट, हमने इन सारी लिस्ट को ऐड कर दिया, कुछ नहीं करा। प्लस ऑपरेटर लगाया हर एक लिस्ट को, दिस इज फर्स्ट लिस्ट, दिस इज सेकंड लिस्ट, दिस इज थर्ड लिस्ट, दिस इज फोर्थ लिस्ट, सारी दिस इज फिफ्थ लिस्ट। ये सारी लिस्ट को हमने ऐड कर दिया, जैसे हमने ऊपर देखा था दिस सीक्वेंस। So this is sequence. So list for देना. So this is an sequence. This sequence contains number of sequences. So again this sequence, ending sequence contains your 5 sequences जो हमने उसको ऐड करा है, उसके अंदर निकाला, उसको ऐड करके एक नई सीक्वेंस बना दी।
So this ending contains your sequences over here. Now यूजर से इनपुट ले लिया, दिस इज इनपुट ईयर, मंथ, फिर इनने इनपुट ले लिया, हमने मंथ इनपुट ले लिया, ये तो हमारा सिर्फ शोइंग टेक्स्ट था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखें ABCDEFG, देन दिस इज डे, तो हमने यहाँ पे फिर इनपुट में ले लिया डे, काइंडली एंटर 1 to 31, मैंने इतना नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ इतना ले लिया। देन यूजर इनपुट में कुछ भी डालेगा तो मैं उसको यूजुअली जो यूजर इनपुट में डालता है तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में होता है, तो मेरे को उस मंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो यहाँ पर अगर यूजर ने 1 to 12 डाला है तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। सो दिस इज माय इंटीजर, तो मंथ नंबर इज इंटीजर। सिमिलरली डेट नंबर को भी मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इस 8 को या इस 28 को भी वो इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग लेता है, मैंने उसको यहाँ कन्वर्ट कर लिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज मंथ नेम, सो मंथ नेम जो हमारा यहाँ आ रहा है दिस इज मंथ नेम, सो दिस मंथ नेम, सो द मंथ नेम, सो हमारे पास एक लिस्ट थी मंथ की, तो हमारे पास यहाँ मंथ से हमने -1 कर लिया, क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स -1 से स्टार्ट सॉरी 0 से स्टार्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 1 को सब्सट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली डे को भी हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लिया डे एंडिंग से, सो वी आर इन ऑर्डिनल, दिस इज डे, so this is date 28, then ending, so this is ending, or just we are printing this is month name plus again we are concatenating the string, so this is and white space over here, then plus ordinal, so this is ordinal is day plus their ending -1 and this is year. So any problem in this program? एक बार समझा दीजिए। कहाँ से समझाना? सर वो ये मंथ आपने लिखा है ना, ये लिस्ट लिखा है, अ लिस्ट विद एंडिंग फॉर ईच नंबर। यहाँ से? हाँ सर। ओके फाइन। सो मेरे को एक लिस्ट बनानी थी, हम क्या करते हैं कि हर वर्ड के आगे दिस इज फर्स्ट अगस्त, सेकंड अगस्त, थर्ड अगस्त, देन 4th अगस्त, 5th अगस्त, 6th अगस्त, 7th अगस्त अप टू 28th अगस्त, देन 21st अगस्त, 22nd अगस्त, 23rd अगस्त, देन 24th to 30th अगस्त, देन वी आर रनिंग 31st अगस्त। तो मेरे पास क्या होगा, एक लिस्ट होगी, मेरे पास डेज आ गए, वो डेज से एसोसिएटेड उनकी एंडिंग होगी, हर डे से एसोसिएटेड मेरी ये एक एंडिंग है। या तो मैं क्या करूं कि एक लिस्ट बना लूं, ST देन ND देन RD देन TH देन TH देन TH देन TH, में यहाँ पे TH एक ही लिस्ट बना लेता हूँ, TH करते हुए 17 टाइम्स लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं। ये 17 हटा देता हूँ, ये इतना सा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं इतना हटा के मैं यहाँ कॉमा लगा के 17 टाइम्स TH लिख देता हूँ। एक तरीका ये होगा। दूसरा पाइथन का शॉर्ट तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस TH को मैं 17 टाइम्स एक सीक्वेंस बना सकता हूँ, तो एक सीक्वेंस इसमें 17 टाइम्स मैं बना दी। सिमिलरली फिर उसके बाद ये हमने रिपीट करा था, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एंट्री थी वो 21st आती, 22nd आती, 23rd आती, फिर उसके बाद फिर 7 बार मेरे को TH लिखना था, या तो मैं 7 बार TH लिखता या मैं ये वाला तरीका अपना लेता ना। पहली बार अगर आप 17 बार TH लिखते तो वो C++ का तरीका हो जाता, एंड दिस इज द पाइथन वे ऑफ राइटिंग योर सीक्वेंसेस। और कुछ? नो सर। फिर जो एंडिंग है यहाँ पे ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस तो सर जितने भी सीक्वेंस हमने ऊपर देखे थे वो सब एक वेट ये जो मेरे पास ब्रैकेट आ रहा है ना, ये ब्रैकेट मेरे को सीक्वेंस Yes, है। हम भी अरे यूज करते थे ना, अरे में हम ये यूज करते थे, तो दिस इज माय सीक्वेंस। हाँ सर। तो सर ये जितने भी सीक्वेंस हैं हमने जो स्मॉल ब्रैकेट्स में बना रखे, इनको एक बड़े ब्रैकेट में लिख दो सर, एक साथ ही। हाँ एक साथ लिख सकते थे ना, एक साथ हम लिखते, फिर मेरे को जो ये 17 था ना, ये TH मेरे को 17 टाइम लिखना पड़ता, अच्छा एक ही ब्रैकेट में लिखते, मेरे को बार बार लिखना पड़ता ना 17। सर अंदर ऐसा ही लिख सकते सर ब्रैकेट्स के अंदर? नहीं वो ऑपरेशन हो रहा है ना, एक सीक्वेंस के अंदर अपन ऑपरेशन नहीं कर सकते ना, अपन ऑपरेशन करके सीक्वेंस बना सकते हैं, सीक्वेंस के अंदर ऑपरेशन। अच्छा सर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो जाती है। हाँ, वो तो उसके सीक्वेंस के अंदर आ गया तो स्ट्रिंग हो गई, कंप्यूटेशन कैसे होगा? फाइन। एनी अदर? सर ये
सर ये ऑर्डिनल्स में क्या है? ऑर्डिनल्स में अपना डे प्लस एंडिंग क्या लिखा है सर ये? ऑर्डिनल में ये मैंने यूजर से डे लिया हाँ सर। है ना, ये डे मैंने यूजर से इनपुट में लिया, ये मैंने यूजर से डे नंबर या इनपुट में ये डे लिया, तो यहाँ मैंने डे ले लिया। फाइन। यस यूजर सर। में क्या डाला था, डे डाला था 28 प्लस उसके साथ एंडिंग मेरे को ऐड करनी चाहिए TH, ये हमको चाहिए था ना, अदरवाइज मेरे को TH अच्छा। नहीं चाहिए होता तो मेरा ये सारा मामला खत्म हो जाता, मैं सीधा यहीं से रिप्रेजेंट कर देता, ये सीधा रिप्रेजेंट कर सर। देता, दिस इज 28 एंड 2020, ये TH एंडिंग मेरे को चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको ओके सर। एंडिंग में आगे बढ़े ना। हमने इंडेक्सिंग कर ली, अब हम स्लाइसिंग करते हैं, काटना पीटना चालू करते हैं स्ट्रिंग से। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरे को पूरी स्ट्रिंग में से कुछ सारा डेटा नहीं चाहिए था, मेरे को कुछ छोटा सा डेटा चाहिए था। सो दिस इज अगेन दिस इज मेरे पास इसमें एक ही आइटम है, हर चेक करना है जिसने भी मेरे से पूछा था अभी कि 2 आइटम क्यों नहीं हो सकते या एक आइटम क्यों नहीं हो सकता, तो दिस इज अगेन ये भी एक सीक्वेंस है टेक, सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ योर कैरेक्टर्स। सो एक ही आइटम है, इसलिए मेरे को यहाँ पे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है या सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम एक ही सीक्वेंस में मान के चलते हैं। तो मेरी सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है, दिस इज लेस देन साइन से, सीक्वेंस कहाँ खत्म होती है, ग्रेटर देन साइन पे। फर्स्ट कैरेक्टर इज लेस देन साइन, देन A, देन व्हाइट स्पेस, देन href एंड सो ऑन। सो मेरे पास ये डेटा आ गया, अब मुझको क्या करना है, मेरे को डेटा चाहिए, मेरे को क्या डेटा चाहिए, मेरे को सिर्फ ये निकालना है, दिस इज HTTP पाइथन, ये सिर्फ इतना डेटा निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर लेते हैं कि HTTP कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो HTTP स्टार्ट हो रहा है, दिस इज 0, दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, so H कहाँ पे आ रहा है, this is 9th position, so we are starting from 9th position. I am starting my six slice from 9th position, तो मेरे को यहाँ से H चाहिए, तो this is my 9th position. Fine. Now कहाँ खत्म करना है, G पे खत्म करना है, so this is again I am counting, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. फाइन। मैं लास्ट पोजीशन क्या लिखूंगा, 30, तो मेरे पास ये जो पोजीशन आ रही है दिस इज 30, तो मेरी सीक्वेंस में जब स्लाइस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जिस पोजीशन से चाहिए वहां से स्टार्ट करते हुए जिस पोजीशन तक चाहिए उसका नेक्स्ट वन, तो ये 30 पोजीशन इंक्लूड नहीं होगी। अगर मेरे को 29th एंडिंग पर चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 30th पोजीशन, सो दिस इज माय 30th पोजीशन। तो ये बोलता है 9 से स्टार्ट करते हुए 30 पर, तो ये 30 मेरा अगर ये इन्वर्टेड कोड आ रहा है तो मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ डेटा, मैं डेटा निकाल रहा हूँ 9 से लेकर 29 के लिए, मैं स्लाइस करूँगा 9 to 30। एनी प्रॉब्लम स्लाइसिंग में, फिर चेक कर लो। मैं क्या करूँगा, मेरे को लास्ट आइटम से -1 वाला आइटम चाहिए, तो मैं वहाँ पे सॉरी अगर मेरे को 29th आइटम चाहिए तो मैं स्लाइस 30 पे करूँगा। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9 एंड दिस इज एंडिंग +1 आइटम। कोई प्रॉब्लम? फाइन। सो साइलेंस मिनट्स आपको समझ में आ रहा है नाउ। सो लेट्स से आई एम डिफाइनिंग माय नंबर ओवर हियर, सो दिस आर माय द नंबर्स, सो this is numbers, this is a sequence, this contains sequence from 1 to 10, so this is my sequence 1 2 3 5 6 7 8 9 10. Then I am printing the values from 3 to 6, so this is my printing 3 to 6, so I am printing 3 to 6, so this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, so it starts printing from 4, then 5 and then 6, and this is my 6, sorry, so this is 0 1 2 3 4 5, so I am writing 6, so this is my 6th position, इसको हम include नहीं करते हैं, तो I am just giving 3 positions, so 6 minus 3, so I am having 3 values, this is
4, 5 and 6. Again printing from 0 to 1. So printing from 0 to 1, it means that I am start printing with 0th position and ends before 1. So it means starts with 0 and ends before 1. So it contains only one item, that is 1. Fine. Any problem till now? No, sir. Okay. Then number from 7 to 10, so it represents 8, 9 and 10, because 10th item is 10th position is here. So this is the our index position 9, because it starts from 0. So I am starting with 7 and ending before 10th position. So this is 8, 9, 10. Similarly, minus 3 to minus 1. So it will start from minus 3 to minus. So what is the minus 3? So this is minus 3, this is minus 1, this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3. So I am putting minus 3 to minus 1. So my start position is minus 3, so it will start by 8, then 9, then end before minus 1. So end before minus 1, so it contains only 2 items. This is minus 3 and minus 2. Fine. Now printing from minus 3 to 0. Here printing from minus 3 to 0. So this is minus 3 to 0. रिवर्स डायरेक्शन में ये नहीं देगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट आइटम यहाँ पहली पोजीशन पे होना चाहिए था और लार्जेस्ट आइटम जो है, लार्जेस्ट इंडेक्स सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए था. यहाँ इसका जस्ट रिवर्स आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे प्रिंटिंग फ्रॉम 0 टू -3 होता तो यहाँ वैल्यू देता है ये 0 टू -3, तो यहाँ मेरे को वैल्यू देता है 1 to 7. फाइन. मैंने -3 to 0 करा है, ये वैल्यू नहीं देगा. एक बार और सुन लो. दिस इज आई एम जस्ट, मैं -3 से -1 तक दे रहा हूँ. इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं यहाँ पर -3 जो है मेरा इंडेक्स छोटा है, -1 मेरा इंडेक्स बड़ा है. पर यहाँ पर मैंने जैसे ही 0 डाला तो 0 जो है इंडेक्स मेरा बड़ा है, सॉरी छोटा है -3 से. क्यों? दिस इज -3 इज जस्ट एन 7 पोजीशन. सो 7 से 0 पे नहीं आ सकता, 0 से 7 पर जा सकता है. तो नेगेटिव डायरेक्शन में हम माइनस इंडेक्सिंग के साथ नहीं जा सकते. Even getting the last item, so the last item will be as numbers -1. So this is my last item. So this represents -3. Now again for getting the last 3 items, so getting the last 3 items is starting from -3 to any position. So that means यहाँ पर मैंने अगर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर मैं लास्ट आइटम तक जा रहा हूँ. मेरे को लास्ट आइटम का इंडेक्स नहीं पता. तो when I try to get the last item, so this is -3 to the last item. So मैंने यहाँ last item में कुछ भी नहीं लिखा है. This is 8 round 2. So when I want to get first 3 item, so instead of writing from 0 to 3, we can write as a numbers, then blank, then column 3. So we'll get first 3 items. In order to get all the items, what we can do is either we can represent as a number, so it will give your result, that is 1 2 3, or we can use numbers then column. So it will start with 0th position, it will start with 0th position, and it will end with the last position. So this is 1 2 3 4 5 6. Fine. Now again splitting your URL in the form of like that. So हमने कोई यूजर से हमने कुछ इनपुट डाला. अब उस इनपुट में मेरे को उसका डोमेन आइडेंटिफाई करना था. लेट्स से ये मेरा आइटम था, तो ये मेरी एक लिंक है. इस लिंक में से मेरे को उस साइट का नाम पता करना है. वो मेरी साइट कौन सी है, हमको उस साइट का नाम पता करना है. हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी साइट कौन सी है. दिस इज समथिंग.com. तो समथिंग में से मेरे को सिर्फ समथिंग ही निकालना है. तो समथिंग में कैसे निकालूंगा, तो मैं पोजीशन देख लेता हूँ. दिस इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन. या तो हम ऐसे कर लें, हम शुरू से कर लें, या दूसरा तरीका क्या करें, हमारी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है. हमारी पोजीशन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट राइट से. दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4. हम -4 से स्टार्ट करते हैं. सो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज
फ्रॉम 11th पोजीशन टू -4th पोजीशन। -4th पोजीशन क्यों? क्योंकि आखिरी के 3 कैरेक्टर जो हैं हमारे वो .com है, तो हमको ये नहीं पता कि उस साइट का नाम कितना हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमको ये तो पता है कि शुरुआत में HTTP : बैक / एंड www इतना तो आ रहा है, मतलब ये हमारे जो है ये 10 आइटम्स तो हमारी शुरुआत में आते हैं, ये 10 काउंटिंग है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 11वीं पोजीशन से। कहाँ तक स्टार्ट करेंगे, आखिरी की 4 वैल्यूज तक। आखिरी की 4 वैल्यूज क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो .com हम उसको मान के चल रहे हैं, तो अगर वो .com है तो हम उसके आखिरी के 4 कैरेक्टर्स छोड़ देंगे। तो ये आखिरी के 4 कैरेक्टर्स हमने छोड़ दिए। So this is .com. So it will represent your domain URL. So you'll get the domain URL. This is http python.org. So you'll get Python over here. So starting with the 11th position, and we are limited to the -4th position. So this is Python. So we'll get Python. Okay. Then जैसे अभी तक हम, हाँ बोलो सर जैसे हेलो। हमने इससे पहले वाला कोड, इससे पहले वाला हमने कोड देखा था सर, जहाँ पे हमने -3 से 0 पुट कराया था, मतलब -3 से हाँ 0, तो वो चला नहीं था क्योंकि जो 0 था वो 7 नंबर पे था शायद, हाँ ऐसा कुछ था ना सर देखो, इससे पिछले -3 वाले से कोड। 0 पे नहीं चल रहे थे। वेट, -3 से 0 इसलिए नहीं चल रहे थे कि -3 बड़ा था और 0 जो था वो छोटा इंडेक्स था, ठीक है ना। इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो यूजुअली हमको सीक्वेंसिंग किधर से भी दे रखे हैं। तो अगर मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस है, हमारे पास 10 कैरेक्टर थे, हमने उसमें से -3 से 0 करा, तो वहां पे -3 हमारा कितना आ रहा था, हमारा 7 आ रहा था। और 0 से स्टार्ट कर रहे थे, 0th पोजीशन इज द 0th पोजीशन। तो हमारी जब भी सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे तो वो छोटे नंबर से स्टार्ट होकर बड़े नंबर पे खत्म होनी चाहिए। फाइन। तो हमारा जो इंडेक्स था वो इस कंडीशन में, ये वाली जो कंडीशन थी, दिस इज -3 to 0। तो -3 कितना आ रहा था हमारा, -3 दिस इज 8 है ना। तो दिस इज दिस पोजीशन। तो मैं स्टार्टिंग पोजीशन, जब हम यहाँ पर नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं लिस्ट में, तो यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन रखते हैं, यहाँ पर एंडिंग पोजीशन रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही थी, स्टार्टिंग पोजीशन इज ग्रेटर देन द स्मॉलर पोजीशन। तो मैं उल्टी चीजें कैसे निकाल सकता हूँ, हम जब एक सीक्वेंस निकालेंगे तो छोटे से बड़े को फाइंड आउट करेंगे। कंप्यूटर में स्टोर तो वैसे ही होना है ना, उल्टी डायरेक्शन में। इसमें हमको सीक्वेंस ये कि आप इटरेट नेगेटिवली कर सकते हैं, पर जब हमने आपसे सीक्वेंस पूछी तो छोटे से बड़े पे ही लेंगे ना। सो हमारी जो इनिशियल पोजीशन होगी वो छोटी होनी चाहिए और जो एंडिंग पोजीशन होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। अब इस कंडीशन में आपको जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आइटम्स ज़्यादा हैं, इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो इसकी लेंथ मान लो, कैलकुलेट कर लो, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देन 20। तो अब मेरे पास ये -4 -4 यहाँ पर कितना हो गया, लेट्स से दिस -4 इज 20 माइनस, सो दिस इज 16th आइटम। सो 11 से 16th आइटम पे जा रहा हूँ, तो मेरा 11 तो 16 से छोटा ही है, तो ये वैल्यू दे देगा हमको। हाँ ओके ना अभी, हाँ और कुछ, ओके थैंक यू। अब यहाँ पर जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, ये स्टेप हम बेबी स्टेप ले रहे हैं, हम एक एक स्टेप ले रहे हैं, एक एक आइटम पे इटरेट कर रहे हैं, है ना। हम एक एक स्टेप का बढ़ रहे हैं। अब मेरे को स्टेप्स बड़ी लेनी है, राइट। मैं एक सीक्वेंस, एक एक किसी भी कैरेक्टर को स्किप नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आइटम को स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे को 2 आइटम 3 आइटम या सीक्वेंस बड़ी करनी है। तो लेट से मेरे पास जो नंबर था, बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये -1 नहीं लिखता तो भी हमारा रिजल्ट वही आता, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले, अब यहाँ पर हमारे पास जो हम स्लाइस करते हैं, तो स्लाइस में पहला होता है स्टार्टिंग पोजीशन, सेकंड होता है हमारा एंडिंग पोजीशन +1, देन नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज टू बी टेकन। ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, अगर हम 1 स्टेप ले रहे हैं तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर 1 स्टेप। अगर मेरे को यहाँ पे 2 स्टेप लेनी होती तो मैं यहाँ पे 2 लिखता। तो देखिए यहाँ पर 1 स्टेप ले रहा हूँ, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं किसी को भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर दूसरा आइटम ले रहा हूँ, मतलब एक एक आइटम को मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। सो दिस इज स्टार्टिंग विथ 1, देन स्किपिंग 1 आइटम, then again 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. Okay, any
Anything else? नो सर। ये समझ नहीं आया? So अभी तक हमने क्या करा था, हम हर नेक्स्ट आइटम को उठा रहे थे। अब मैं चाहता था कि एक एक आइटम को छोड़ूं या दो आइटम को छोड़ूं या मैं स्टेप साइज बढ़ाते जाऊं। अभी हमारा स्टेप साइज 1 था, 1 था हमारे। यहाँ पे हम एक एक आइटम उठा रहे थे, हमारी स्टेप साइज 1 थी, हम हर पर्टिकुलर एंटिटी को उठा रहे थे। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मैं सारे आइटम्स को उठाना कुछ वैल्यूज को स्कीप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ वैल्यू स्कीप कर रहा हूँ। तो यहाँ वैल्यू क्या स्कीप कर रहा हूँ, दिस इज बिगिनिंग विद 0, तो बिगिनिंग विद 0 दिस इज माय 0 पोजीशन, तो इट विल प्रिंट 1। देन आई एम taking 2 steps, so this is 1 step and then second step, so next item will be 3, so this is my step size. Then I am giving 3, then I will give another item, so I am skipping 1 and the next item, so my step size is 2, so it will print 5, then it will print again 7, then it will print 9। ये हमारा वैसे ही फॉर लूप है जहाँ पे हम फॉर लूप में i इक्वल्स टू i प्लस 1 करते थे। अब यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है i इक्वल्स टू i प्लस 2। फाइन, हमने हमारी स्टेप Yes, बढ़ा दी। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग विद 3 to 6। सो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग थर्ड पोजीशन से कर रहा हूँ और 6 पोजीशन पे एंड कर रहा हूँ, और मेरी स्टेप साइज 3 है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ थर्ड पोजीशन से। तो दिस इज 0 1 2 3, तो मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड पोजीशन से, मैं एंड करता हूँ 6 पोजीशन पे, तो दिस इज 4 5 6, मैं यहाँ एंड करता हूँ, पर मेरी स्टेप साइज भी क्या थी, 3 थी। तो ये 7th पोजीशन मेरी आ ही नहीं सकती, क्योंकि थर्ड के बाद स्टेप साइज भी 3 थी और उसने 6 पोजीशन पर एंड ही कर दिया था, मतलब 5th पोजीशन पर एंड कर दिया था। तो ये आइटम मेरे को सिर्फ एक आइटम देगा, दिस इज 3 to 6 में स्टेप साइज 3। फाइन, नाउ again another example. So another example is starting with the 0th position, ending with the last, and ends with the last position with step size equals to 4. So I'm starting with the first position, this is 1, then taking step sizes of 4, this is 1 2 3, so this is my fourth item. So 1 2 3 and 4, this is fourth item, again taking size of 4, so this is 1 2 3 and 4, so this is my fourth item, then taking size, so वो हमारे लिमिट के बाहर चला गया, so this is my output is what this is my output is 159, so this is my output are 159। fine, now अब हम जो नेगेटिव डायरेक्शन में इटरेट करना चाह रहे थे, तो अभी हमने स्मॉलर बिगर पोजीशन से स्मॉलर पोजीशन के नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि हमारी स्टेप साइज क्या थी, पॉजिटिव थी। अब हम वो भी चाहते हैं कि हम बड़ी पोजीशन से छोटी पोजीशन पे जाएं, तो अब हमको यहाँ पर हमारी जो स्टेप साइज है वो -1 यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। जो अभी तक दिक्कत आ रही थी हमको, जो हम स्टार्ट कर रहे थे, दैट इज फ्रॉम -3 to 0, तो -3 to 0 के साथ अब मेरे को स्टेप साइज लगानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ स्टेप साइज लगा रहा हूँ, तो दिस इज माय स्टेप साइज इज -1। तो अब मेरे पास आउटपुट आ रहा है, तो आई एम राइटिंग विद 8 3, सो -1। तो अब मेरे पास वैल्यूज कहाँ से आनी चाहिए, एनी इनपुट? एट से 3 थर्ड पोजीशन with size -1, so this is starting with the 8 position। सर नॉइज बहुत आ रहा है। क्या आ रहा है, नॉइस आ रहा है? क्या सर, नॉइज आ रहा है। ओके फाइन, अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। Okay, fine. So starting with the 8th position, so starting with the 8th position is this, my 8th position is the 9, so I am starting with the 9, then my ending with the third position, before the third position, so I am ending on the 4th position, so this is having 8 then 7, then 6, then 5, then 4th position, so I am having total number of 5 elements over here, so these are my 5 elements in the negative direction। Similarly from 0, सर नॉइज आ रहा है। यार इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सब बंद करके बैठा हूँ। Fine. So writing from the 10 8 6 2, so I am starting with the 10 and ending with the 0, so I am having values from 10 to 0 with -2 and so on. So these are different results for different values. Now if I want to add some additional sequences,
So how can we add? So this is हमने इस पे बात करी थी, एक sequence plus another sequence, so we can use plus operator to add another sequences. So this is 1 plus 2 plus 3 plus another sequence 4 plus 5 plus 6. So it will give a result of a final sequence. This is 1 2 3 4 5 6. Now if I am having a value 1 2 3 4, then I am adding a sequence. This is a word simple string, so I cannot add it because this is not in sequence. So to do this, I have to convert it into the string, like I have to put it into and bracket and then bracket, then it will represent, it will give you answer. Because my net is not that much working, so ये output इनके आ नहीं रहा. Fine. Now the multiplication of sequences like Python into 5 जो मैंने आपको पहले बताया था, high into 5, so this is Python 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 and so on. So you will get 5 times of Python. Now हमको फिर sequence को print करना था. This is 42 this, so we can have 42 into 10 times. This is 42 42 42, so we will have a list that contains 10 times 42. Now when I like to create an empty sequence, so I can go for a equals to an empty brackets. Now if I want to print an empty string, so it will represents only a empty string, nothing over there. But if you want that 10 position that contains nothing, so instead of having nothing in this, you can write a none keyword over here. So none represents nothing over here, so it will contain certainly here a equals to a none, so you will get 10 times none while printing a into 10 times. So it will contain a sequence of 10 items that contains nothing. But here it does, when you are having nothing over in the bracket, so it will have nothing in it, so it doesn't contain any 10 items over here. Fine. Now the next program. So in the next program, I'll just like to do एक ऐसा आउटपुट चाहिए था मेरे को, जिसमें मेरे पास मेरी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन की पूरी विड्थ निकालेगा. उस स्क्रीन की विड्थ में सेंटर में जाके यहाँ से कुछ माइनस माइनस प्लस प्लस साइन देगा, देन हेलो डियर लेगा, देन हाउ आर यू एंड सो ऑन. सो ये आपका अनदर नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊंगा, तो कोई भी मेरे को ये वाला प्रोग्राम देख लो, मेरे को समझाना है आप लोगों को. इसको प्रोग्राम को आप लोग समझेंगे, मैंने कुछ नहीं करा है इसमें, से स्ट्रिंग को आगे पीछे और स्पेसेस मेंटेन करिए. सो दिस इज माय सेंटेंसेस. तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन विड्थ 80 ली है, मेरे सेंटेंस की लेंथ इनपुट से सेंटेंस लिया है, तो ये मेरी इनपुट की सेंटेंस है और उस पर बात करिए. तो इसमें नथिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रिंट करवाना है. आप नेक्स्ट क्लास में मुझको ये समझाएंगे कि ये प्रोग्राम क्या है. यस सर. हाँ बोले. Okay. Okay. Then comes whether want to check the membership of that item that exists in your list. So let's say I am having a sequence, let's say RW. So permission, this is just the name of your list or the string. So a string या list हम दोनों एक साथ लेके चलें. So this contains two characters R and W. So whether we check whether W is in permission, so we have to write just W, whether we are checking that it exists in your that list permission. So we'll check W in permission, so it will, if W exists in this RW, so it will return true, otherwise it will return false. Again I am checking that X exists in this RW, so certainly it not exists in RW, so it will return false over here. Again this is for the strings. Now we are going for sequences. So for these sequences we are having sequence user equals to mlh, second item is foo, third item is bar, then I am taking input from the user, so this is my input from user, so this is in users, so this is in user, so I am checking whether this input, so I am taking this input and pipelining it with this in. Instead what we can do is I am taking a variable a equals to input, enter your name, then storing it into a, then checking a in user. We can do is
pipelining those expression into a single expression. So this is an sorry in statement. So input, enter your name that exists in users or not. So I am writing this. I am entering my name. This is Avi. So it doesn't exist in this user. So it will return finally a false. Now checking let's say a username and their pin code. So let's say we are having a sequence that contains another sequence. So let's say database is a sequence. It contains first sequence which contains Albert and 123. This is again first sequence. This is second sequence. This is third sequence, and this is fourth sequence. So this database sequence contains 4 sequences, and each sequence contains 2 items. So now, so I am taking a username. So I am taking username from the user. Again, I am taking a input pin from the user. So this has been entered by user. Now I want to check whether this list exists in item or not. यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम सिंगल आइटम चेक कर रहे थे कि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो इस स्ट्रिंग में सॉरी सीक्वेंस में एग्जिस्ट होती है नहीं होती. अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाली जो सीक्वेंस हमने इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों की एक सीक्वेंस बना ली, तो क्या ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है. तो फंडा वही है. यहाँ पर मैं सिंगल आइटम को चेक कर रहा था, यहाँ मैं सीक्वेंस को चेक कर रहा था. तो लेट्स से वी आर अप्लाइंग इफ दैट सीक्वेंस. सो दिस इज यूजरनेम एंड पिन. सो इफ दैट यूजर एग्जिस्ट इन डेटाबेस, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो विल प्रिंट. मैं सिर्फ इफ इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो आई विल प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर रहे. सो दिस इज वेदर दिस Albert exists in sequence. So it will represent. So I am giving Albert then 4242. So this is Albert and this is 4242. तो ये हमारे सीक्वेंस नहीं है. Albert के साथ मेरे को 1 2 3 4 डालना था. तो ये वाली सीक्वेंस हमारी एग्जिस्ट नहीं करती. तो मैंने इसकी एल्स कंडीशन में कुछ लिखा नहीं है, तो इसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा. अदरवाइज मैं यहाँ अल्बर्ट देन 1 2 3 4 लिखता तो आउटपुट यहाँ पर एक्सेस ग्रांटेड आता. नाउ in addition to that sequence, we are having some aggregator function available here. So let's say we are having 3 functions available. First is the length of your sequence, then the maximum number of that sequence, and the minimum number of that sequence. So I can use length then the name of sequence. So this is the length of sequence is 10. Then we are having a list right from 1 to 10. So maximum of that number is 10, and the minimum number of this is 1. Now we have to find what is the result of that max and min function. Usually in the machine learning course, in the later part of your program, you will get an algorithm of max min algorithms, a max min function available in the your statistics or in calculus that will be used in machine learning. So this is my max min function. So what it represents is I am finding the maximum of 2, 3 and the minimum of 4, 5, 6. So first the minimum function is being evaluated, and the minimum function will give the value of 4 from the list of 4, 5, 6, and from this we are having a value, that's it, 2, 3, 4, and I am finding the maximum from 2, 3, 4. So the result will be the 4. So I am finding the maximum value from the minimum value. So this is max min function. Just a simple example. Now हमने यहाँ तक जो भी इस ब्रैकेट से यूज करा था, दिस इज सीक्वेंस था. So this is my list, and now I am having a value. This is a list. So this is my जो हम यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे, दिस आर द लिस्ट. सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस. अब हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक जहाँ पे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आएंगे और एक जहाँ पर हमारे पास बिग ब्रैकेट आएंगे. तो अभी तक हम लिस्ट पे काम कर रहे थे. तो लिस्ट आर द म्यूटेबल्स, दैट इज वी कैन द चेंज इट्स वैल्यूज. सो लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, हम सिंपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को अगर मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं एक लिस्ट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ. सो इट विल कन्वर्ट योर स्ट्रिंग into the list. So you are having a list HELLO. So इसमें क्या करा, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया. So this is our list function. So list function converts your string into a list.
of number of items, so that will represent this is now list. So this is my list, x equals to 1 to 1. So I am containing the items x equals to 1. Now I am printing x, so I'll have a value of 1 to 1. Now I like to change the value of the first position, so I put x1 equals to 9, so my list will become 191. So I can change the value of list. Again, x equals to 1 to 10, and I want to delete second position, there, sorry, x2, that is the third item. So when I'm printing, so I'll get 1 to, then 4 to 10. Then assigning to the slices, let's say सर टाइम हो गया. हो गया, चलो ठीक है, फाइन, थैंक यू. एक बार मुझको अटेंडेंस लेने देना.